Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Been infectious on the rise amid the second wave in the country. The studies of students across India continues to be impacted rather severely, with everyone having moved to online education. However, the impact on one such small city in the western part of the country, in Rajasthan, has been rather grave. I'm talking about Kota at this point, which is known to be a coaching center hub. At this point, I'm coming to you from a coaching center institute in the town of Kota, where yet again, because of the self-imposed lockdown that was imposed by the Chief Minister earlier this week, coaching centers have been closed, due to which several students who had actually come in and joined back these institutes only in January or February this year, after having moved to online education, institutes once again have been shut down. And the reason I say that the impact has been rather grave here is because not only is the coaching center industry that has been impacted, but in fact the future of at least 2 lakh people who directly or indirectly connected to this industry is rather uncertain. Whether it be the public transport industry, auto drivers, stationery, hostels, wardens, even the local markets here, where most of their consumption or earnings would come from the students here. Till 2019, at least 1.65 lakh students had actually enrolled them across 75 coaching center institutes in Kota itself. However, the number has dropped to more than 50% in the past 1 year. We spent an entire day in Kota to understand what the crisis here looks like. While 30,000 to 50,000 students are still enrolled here at various hostels, even though the education has moved online classes, there are pre-recorded sessions that are going on, but there are several more students who are in a panic mode and wish to go back home. However, as I mentioned, there are several other stakeholders who have been involved, whom we spoke to earlier today to understand how are they planning to cope with this particular situation. अगर हम बच्चों की बात करें 2019 के अंदर हमारे कोटा में अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे ऑफलाइन कोचिंग के लिए। 2020 के अंदर जिस तरह से कोरोना महामारी चालू हुई और कोचिंग्स ऑफलाइन बंद कर दी गई, उसके बाद से धीरे धीरे बच्चे यहाँ से मूव किए। 2020 के अंत तक थोड़ा थोड़ा राहत मिली, थोड़ा कोरोना का इम्पैक्ट कम हुआ और जनवरी में इंस्टीट्यूट्स को रीओपन किया गया। जनवरी में जैसे रीओपन किया उसके बाद से फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा आने लग गए कोटा में, और अराउंड 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स जनवरी, फरवरी, मार्च में लगभग कोटा में थे, जो अब 15 के आसपास लगभग घट के होंगे। 35,000 के आसपास स्टूडेंट्स अब ओवरऑल कोटा में अभी तैयारी कर रहे हैं, बट उनकी क्लासेज अभी ऑफ है। उनकी जो तैयारी चल रही है ऑनलाइन मोड के थ्रू चल रही है, डिजिटल क्लासेज उन बच्चों की चल रही है, और जो स्टूडेंट्स घर जा चुके हैं उनकी भी क्लासेज डिजिटल चल रही है अभी। तो इसको ओवरकम डायरेक्टली करना तो मुश्किल है, बट एक प्रयास हम सबका रह रहा है कि जो बच्चा यहाँ से गया है उनको हम ऑनलाइन क्लास लगातार प्रोवाइड करते रहें। तो हमारे टीचर्स यहाँ पर आकर उनकी लाइव क्लासेस लेते हैं, उन क्लासेस को स्टूडेंट्स अपना अकॉर्डिंग मैनेज करके उनको देखते हैं, और जो कुछ डाउट्स होते हैं डाउट्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐप के थ्रू डाउट सॉल्व करते हैं, और हमारी ट्यूटोरियल क्लासेस डाउट्स के लिए अलग से लगती है, उसमें अपने बच्चे डाउट्स पूछते हैं। और रेवेन्यू वाइज क्या लॉस रहा होगा? रेवेन्यू वाइज हम डायरेक्टली एज ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से भी देख सकते हैं कि जहाँ हम 2019 में 2 लाख के आसपास की बात कर रहे थे, आज हम अप्रॉक्स 35,000 के आसपास बच्चे ऑफलाइन में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो रेवेन्यू उसी रेशो में वेरिएशन तो आएगा ही सही। किस इम्पैक्ट अगर आप हमें टेंटेटिव बता देंगे तो? टेंटेटिव जैसे मुझे जितना आइडिया है अप्रॉक्स 3,000 के आसपास करोड़ की इंडस्ट्री कोटा में ये बताते हैं कोचिंग की, तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेंगे कम, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री में इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 इम्पैक्ट होते हैं। एक तो इंस्टीट्यूट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कम होना, और प्लस कोटा सिटी में रहने वाले बच्चों की संख्या कम होना, इन दोनों से इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम मान के चलते हैं लगभग 20% के आसपास ही बच्चे यहाँ पर हैं, मान सकते हैं एज ए इकोनॉमी। Several coaching institute owners and district officials that ThePrint spoke to confirmed that the revenue in Kota had declined by 50% from 3,000 crore over the past 1 year. The lives of nearly 2 lakh people, including hostel owners, mess staff, stationers, auto drivers, local vendors, among others,
rely on the regular influx of students in Kota. पिछले 11 महीने से कोचिंग इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी, वापस चालू हुई। कोटा के अंदर बच्चा वापस आने लगा। 10 से 15 हज़ार बच्चा हमारे कोटा शहर में आ चुका था। बच्चे को लाने के लिए हमने पूरे प्रयास करे। इसके अलावा बच्चे को हमने यहाँ कोटा के अंदर जो हमारा हॉस्टल है, हॉस्टल में हमारे सिंगल लेट बाथ अटैच और सिंगल कमरे का कॉन्सेप्ट है। एक 4 कमरों का आइसोलेशन वार्ड हर हॉस्टल में बनाया हुआ है। हर बच्चे की सुबह शाम मॉनिटरिंग होती है ऑक्सीमीटर से, थर्मल स्कैनिंग गन से। बच्चे को हम फूड में कुछ हेल्दी डाइट भी दे रहे हैं, बच्चे को मेडिटेशन भी करवा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे को जो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए पूरी बिल्डिंग को वाईफाई करा 200 MBPS की स्पीड देके, जो बच्चा ऑनलाइन उसकी क्लासेस कर सके। जो बच्चे की मेन प्रॉब्लम आ रही है, यूपी बिहार से जो बच्चा हमारे यहाँ आता है, रूरल एरिया में गाँव के अंदर जो मोदी जी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया, गाँव के अंदर नेट की फैसिलिटी ही नहीं है, नेट चलता ही नहीं है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा कैसे? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो हमारे कोटा में जो बच्चा मूव करा, ये वो बच्चा मूव करा है जिनको ऑनलाइन नेट के लिए कोई फैसिलिटी अपने रूरल एरिया में प्रोवाइड नहीं है। वो कोटा आकर हमारे पास में आके ऑनलाइन फैसिलिटी ले रहा है और बच्चा पढ़ रहा है। तो हमारा यही है कि जो एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस वहाँ पे जहाँ पे नेट की फैसिलिटी है, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। और क्या सुविधाएं अब हॉस्टल में आप कर रहे हैं ताकि बच्चा वापस आ सके? बच्चे को हम मैम हॉस्टल के अंदर मेडिकल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। 24/7 हमारे पास एयरलाइन की तरफ से एक वैन प्रोवाइड है। बच्चे को कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो हम उसको आइसोलेट वार्ड हमने बनाया हुआ है, उसके अंदर आइसोलेट कर देते हैं हम हॉस्टल के अंदर ही। उसको फूडिंग भी अंदर ही देते हैं। 18 से 25 साल के बीच में बच्चे को ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके अलावा एक वैक्सीनेशन जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाएंगे, उसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं कि 1 तारीख के बाद हम बच्चों को वैक्सीनेशन लगा दें, जो कोटा शहर में बच्चा रुका हुआ है। हमारे जो एयरलाइन के डायरेक्टर नवीन जी माहेश्वरी जी ने एक मुहिम चलाई स्टीमर की। हम हर हॉस्टल के अंदर हमने फ्री में सभी बच्चों को स्टीमर प्रोवाइड कराएं। सुबह शाम बच्चे स्टीम लेते हैं, भाप की जानकारी दी बच्चों को, स्टीम लेने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा बच्चों के रूम के अंदर हमने डिस्पोजल क्रॉकरी दी है, उसके अंदर बच्चा अपना खाना लेके जाएगा। सैनिटाइजेशन करना है। इसके अलावा बच्चा बाहर कोई परचेजिंग करने नहीं जाएगा। बच्चों को दुकान वालों के नंबर दे दिए, ऑनलाइन वो व्हाट्सअप करेंगे उसको बच्चे को जो भी फैसिलिटी चाहिए और जो भी सामान दुकान से परचेस करना है उसको हॉस्टल के बाहर मिल जाएगा। We are now at an hostel in Rajiv Nagar in Kota, where some students who've been studying at coaching institutes here have decided to continue to stay put until there is more clarity whether Rajasthan will be under complete lockdown or not. So we thought we'll try and speak to some of them here to understand what is keeping their concerns at bay. हाय, आप मुझे अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि ये कोविड का लॉकडाउन शायद फिर से आ गया, इससे आपकी स्टडीज़ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और आप यहाँ पे रहना चाहेंगे? काफ़ी सारे बच्चे वापस भी जा रहे हैं। मेरा नाम ऋषु राज है, मैं पटना से हूँ। मैं यहाँ नीट एस्पिरेंट 2 साल से रह रहा हूँ। मैं पिछले साल भी कोटा में था। कोविड के कारण मेरे को लास्ट मंथ में जाना पड़ा, उससे बढ़िया माहौल घर पे नहीं मिल पाया। मैं फिर से बैक आया, कट ऑफ वो उठाया गया था पिछले बार, इसके कारण मेरे को फिर से बैक आना पड़ा। सिलेक्शन से वंचित रह चुके थे। मैं फिर से कोटा आया और इस बार हालात से लड़के मैं अपना सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी मेरा कुछ मार्क्स से कट ऑफ के कारण रुक गया, हाई कट ऑफ के कारण। और इस बार सिचुएशन जो भी हो, हालात जो भी हो, सब चीज़ से मैनेज करके मैं इस साल सिलेक्शन लेने के लिए आया हूँ कोटा। हालात तो बहुत अच्छा नहीं है अब तक, लेकिन हॉस्टल में फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड की जा रही है। वाईफाई की कनेक्शन है, वीडियो लेक्चर भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज एयरलाइन के द्वारा लिया गया है, और भी कोचिंग्स है वो भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। सारा ऑनलाइन मोड में हो रहा है, सारा ऑन ट्रैक है। और मेरे को लग रहा है कि अभी घर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई असुविधा नाम की चीज़ है ही नहीं है यहाँ पर। अमन पिछौरी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और हाँ, काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है और टेंशन भी होती है, बट जो टीचर्स हैं वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं, और काफ़ी अदर माध्यम भी हैं जिससे मैं अपनी पढ़ाई को ऑन करता रहता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, अपने आप पर फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। और वैसे यहाँ पर कोटा में काफ़ी बढ़िया है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता। पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि आना जाना चलता है, तो बट मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। पिछली साल भी 11th में मेरा कुछ ज़्यादा खास गया नहीं असल में, इसीलिए मैं 12th में यहाँ पर रहकर
तैयारी अपनी कंप्लीट करना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, अगर किसी हॉस्टलर को कोई सिम्टम्स आए, आपको आए, तो उस चीज़ के बारे चिंतित होते हैं? यहाँ पे वो कह रहे एक आइसोलेशन फैसिलिटी भी ऊपर बनाई है। जो भी स्टूडेंट कोरोना से इन्फेक्टेड होता है उसको 4th फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाता है, और बाकी उससे जो भी कनेक्शन है मेस वगैरह से आइसोलेट करके यहाँ पे जो वार्डन है और वो है जो कि और भी भैया हैं, उन लोग सब खाना रूम पे ही प्रोवाइड कर देते हैं। उससे उससे किसी स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं रहता है, तो फिर अच्छा लगता है, स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है कि किसी से इंटरेक्टेड नहीं होता है। मेरे पास 110 रूम्स अवेलेबल हैं, उसमें मेरे पास 80 बच्चे थे, अभी मेरे पास 60 बच्चे हैं। 20 बच्चे मेरे चले गए हैं, और जैसे कि कोरोना के किसी को सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं तो हमने ऊपर 4th फ्लोर को क्वारंटाइन बना रखा है। उसमें अगर किसी को सिम्टम्स दिखते हैं तो हम उस बच्चे को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस उसके अंदर उसका रूम में खाना पीना सब उसमें भिजवाया जाता है, और हम उसकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। Even as about 30,000 students returned to Kota after coaching centers reopened in January this year, at least 75% of these children have once again gone back to their native towns amid uncertainty about resumption of physical sessions. Others, however, say they'd rather stay back and study in their hostels. कोटा में हर वर्ष लगभग 1.5 लाख बच्चा कोटा पढ़ाई करना आता है, कोचिंग लेना आता है यहाँ पर, और 1.5 लाख बच्चा जो है कोटा में लगभग 3,000 करोड़ का साल का रेवेन्यू पैदा करता है यहाँ पर आके, जिसमें से लगभग 1,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डायरेक्ट कोटा के लोगों को मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर हॉस्टल भी आगे सारे खोमचे वाले हैं, चाहे वो सब्जी वाले हैं, चाहे दूध वाले, दही वाले, फुटकर व्यापारी जो होते हैं, इस तरह के लगभग सभी लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है, और लगभग 1 लाख परिवारों का पेट पलता है इन कोटा में कोचिंग के बच्चों के आने से। 3,000 करोड़ का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये हर साल के अंदर, और इस क्षेत्र के अंदर लगभग कोटा में 3,000 हॉस्टल कोटा में इस वक्त बने हुए हैं, जिस पर यहाँ के कोटा के लोगों ने लगभग 1,200 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हॉस्टल क्षेत्र के अंदर। इस 1,200 करोड़ के अंदर लगभग 80% पैसा जो है वो लगभग बैंकों से लोन पे लिया हुआ है। यदि बच्चा कोटा में नहीं आता है, कोरोना की लहर के कारण कोचिंग यदि नहीं खुलती है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान कोटा की आर्थिक व्यवस्था को होने वाला है। और पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो लोगों ने हॉस्टल का जो लोन ले रखा था उसको चुकाने के लिए भी दोबारा अपना लोन लेना पड़ा लोगों को, और दोबारा लोन लेकर या अपनी प्रॉपर्टी बेचकर और किसी न किसी तरीके से पैसे की व्यवस्था करके अपना लोन चुकाया है। और अभी जब जनवरी में कोचिंग दोबारा खुली थी तो एक ये थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण जगी थी कि वापिस शायद बच्चा कोटा में आना शुरू होगा, और जो एक किरण की रोशनी की जो किरण है वो वापिस से दोबारा दिखने को मिलेगी। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद दोबारा कोचिंग बंद होने से एक बहुत बड़ा धक्का कोटा की आर्थिक व्यवस्था को पुनः लगा है, और इस तरीके से एक जो धक्का लगने का मतलब ये मांगे चलता हूँ कि कोटा को लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी होने वाली है, और जो एक 3,000 करोड़ का जो एक व्यवसाय हर साल कोटा में चलता था बच्चों के आने से, वो लगभग 100 करोड़ पे सिमट कर रह गया है वो। तो इस तरह की आर्थिक व्यवस्था यदि बहुत लंबे समय तक चलती है तो निश्चित तौर पे मेरा ये कहना है कि कोटा की आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगी, और इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगी कि लोगों को अपना घर, हॉस्टल और प्रॉपर्टी बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा इसके। Hostel for female in Kota, some students actually claim that they're not very keen to go back to their respective hometowns, because even those particular towns are reporting a high number of cases. With me is one such student who's from Orissa. She says, you were saying you're reluctant to go back. Why is that? There are a lot of cases in my hometown and in my nearby area of my home too, so I'm not preparing to go to my hometown. I'm worried, and my parents are also saying me that it's better to stay at Kota at this moment. Traveling is also not safe, so yeah. And what about you? What's your name? Where are you from? Are you worried about the way the situation is unfolding? And what month did you move back to Kota? Myself Sadki, I'm from Agra, UP. The same with me as well, because in Agra also the number of cases are high and high in respective days. So my father and mother also saying that be in Kota and just study and focus what are you doing, because coming back to Agra is not safe, not traveling and all that. That's it. I am here to prepare for NEET exam. I am currently studying in Achiever Plus from LN, and my course started from December, and I came Kota in January month. And at present I am attending online classes, which I think are not as beneficial as offline classes,
because there are problems coming in doubt solving sessions, and everything has become online. So that is creating a little bit of problem. More concentration is required and interaction is less with the teacher, which is more in offline classes. Moreover, my parents are also concerned for me, like I'm staying here and they're keeping me calling every day from home to come home. But at least till now, I don't want to go home. Not now, but yeah, if the situation gets worsened, then I'll definitely go. यहाँ पे कोटा में मेस 700 से 800 मेस चलती है, जिसमें से मतलब लाख सवा लाख बच्चा तो मेसों में ही खाना खाता है, तो जिससे बहुत सारों का रोजगार चलता था। पिछले साल भी कोरोना आया तो बंद हो गया पूरा। इस साल 2 महीने चले ढंग से, अब फिर बंद हो गया। इससे बहुत सारों पर असर पड़ेगा। सब्जी वाले हो गए और ठेले वाले हो गए, मतलब सबके असर पड़ेगा। सब कुछ बंद हो गया अब की बार फिर दोबारा। अब ये पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं, इसका कुछ नहीं, किसी को आइडिया नहीं है। और ये मतलब जो जिसके पास जो भी है बेच के कैसे न कैसे करके अपना काम चलाएगा। Auto drivers who earlier earned anything ranging from rupees 600 to rupees 800 a day are now having to struggle with trips fetching them only rupees 80 to rupees 100 a day. On some days, even that doesn't come in, a few auto drivers told ThePrint. Local malls where students were regular visitors also remain closed. जैसे कि कोटा को पूरे विश्व में कोचिंग नगरी के रूप में जाना जाता है। कोटा काशी अगर कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर पूरे विश्व से बच्चा अपनी शिक्षा लेने आता है। कोरोना का ये जो काल रहा है, इसने कोटा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आर्थिक रूप से माने, मानसिक रूप से माने, यहाँ का रहवासी सब परेशान है, क्योंकि कोटा की पूरी आर्थिक स्थिति इस कोचिंग के ऊपर ही स्थित थी। कोचिंग की वजह से यहाँ पर जो बच्चा आता था, मार्च और अप्रैल का वही एक सीज़न होता था जिसमें यहाँ पे लगभग 2 लाख बच्चा आता था, और एक बच्चा लगभग 2 लाख रुपए यहाँ पर आके कोटा में एक साल में इन्वेस्ट करता था। लेकिन पिछली बार जो कोरोना आया वही मार्च में आया और वो बच्चा नहीं आ पाया। अंत में जाके जनवरी में बच्चा यहाँ वापस आया, लेकिन उसकी संख्या लगभग सिर्फ 30-35 हज़ार थी। वापस ये कोरोना की दूसरी जो वेव आई, उससे वापस वो बच्चा जा चुका है। अब यहाँ पे बच्चा सिर्फ नाम मात्र का है, और अभी इस वेव में ये भरोसा नहीं कि ये कब तक चलेगी और कैसे वापस हालात ठीक होंगे। पिछली बार के कोरोना को तो लोगों ने किसी तरह से झेल लिया, क्योंकि उसके चाहे वो ब्याज थे, चाहे बिजली के बिल थे, चाहे नल के बिल थे, चाहे मेस का था, चाहे स्टाफ का था, कई सारे खर्चे थे जिनको उसने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके लोगों से उधार लेके झेल लिया। लेकिन इस बार की जो वेव आई है, इससे लोगों को कि पुराना जो कर्जा था वो माथे था, और ये नया कर्जा जो वापस माथे चल रहा है, क्योंकि ब्याज 24 घंटे चलने वाली चीज़ है, वो रुकता नहीं है, वो अनवरत चलता रहता है। तो इस बार की जो वेव आई है ये बहुत खतरनाक है, और इससे कोटा कहाँ पहुँचेगा इसका आकलन कर पाना नामुमकिन है। Over the past 25 years, as India's economy boomed, Kota carved a niche for itself by reliably getting students to clear IIT, NEET, and other entrance examinations. While there have been enough debacles on the way, a certain model of coaching education that has spread across the country became associated with Kota. With COVID cases on the rise in Rajasthan, particularly in Kota, what remains of this industry remains to be seen. Until then, students continue to cope with online classes. With Rohit Jain Paras in Kota, Rajasthan, this is Aneesha Bedi for ThePrint.